Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. I am teaching you chapter number 1. Today date is 10 April 2021 and name of the chapter is things around us. So let's do recapitulation what we have done in our previous video. So in previous video, student, in previous video, the characteristics of a living thing, that is living things need food, all living things breathe, living things grow and reproduce. Living things move, and how there is a movement in plants also. So these are the things we have already discussed in our previous video. Now student, movements in animals. So animal also move from one place to another in search of food and shelter. Is it clear? Animals also move from one place to another in search of food and shelter. Now animals use their legs to move from one place to another. Now when we are talking about the birds, so how the birds move? So from one place to another, so the birds can move, the birds use their feet and wings. Is it clear? Movement in animals. So some animals like bird, how they move? They use their feet and wings to move from one place to another. Another category is some animals
some animals like snake and some animals like snake and earthworm earthworms use their body use their bodies to move use their body to move or you can say they crawl क्रॉल मीन्स रेंग के जो चलते हैं उन एनिमल्स को बोलते हैं क्रॉल करना इज इट क्लियर फॉर एग्जाम्पल सम एनिमल्स देखो मूवमेंट इन एनिमल्स हो गया मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी है मूवमेंट इन एनिमल्स में एक कैटेगरी तो हो गई दे मूव ऑन देयर लेग्स एनिमल्स लाइक डॉग है काऊ है बिफलो है टाइगर है so these are the animals which can move in such a manner another some animals in this category what will come birds so how the bird move from one place to another how the birds move from one place to another they use their feet and wings they use their feet and wings to move from one place to another and another category of the animals how they move they crawl on the land they crawl for example some animals like snake and earthworm use their bodies to move ठीक है उनके दूसरे एनिमल्स की तरह लेग नहीं होते ना तो विंग्स होते हैं वो अपनी बॉडी को यूज करते हैं so they crawl on the ground or they crawl on the land so this is the way some animals move from one place to another and in non-living things what the non-living things non-living things what will come in this category student non-living things do not move non-living things do not move on their own what does it mean it means that बेटा जो non-living things होती हैं उनमें अपने से मूवमेंट नहीं होती है लाइक ए प्लांट्स में भी मूवमेंट है एनिमल्स में भी मूवमेंट है इज इट क्लियर और ह्यूमन बींग्स भी मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन व्हेन वी अप्लाई द फोर्स जब हम उन्हें पुश करते हैं देन ओनली दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और अगर व्हीकल्स की बात करते हैं तो व्हीकल्स आर मूविंग ऑन सीएनजी पेट्रोल और डीजल सो जब हम व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं दैट इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग्स देन ओनली दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे कांट मूव बाय देयर ओन अगर कोई कार खड़ी है अगर आप उस कार को स्टार्ट नहीं करते हो आप सोचो कि कार अपने से मूव करके रोड पे जाने लगेगी तो दिस इज नॉट पॉसिबल ओके सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन Next characteristic of a living thing is
Is it clear? Now next point is living things feel. Okay, so when you get hurt, मतलब कभी आपको चोट लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लेइंग इन द ग्राउंड और वाइल प्लेइंग यू फेल डाउन एंड यू आर इंजर्ड, सो यू फील द पेन. हमें पेन, जो लिविंग थिंग्स होती है उनको पेन फील होती है. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स फील. फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सीडेंट हो गया, बोन ब्रोक हो गई आपकी, ठीक है, या आप इंजर्ड हो गए, सो वी फील द पेन. तो क्या होगा, नॉन लिविंग फील द पेन. बाई चांस इफ यू टच सम हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाई चांस हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, तो व्हाट वी डू, इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, वी रिमूव आवर हैंड. ठीक है, अगर बाई चांस हम लोग किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर देते हैं, इमीडिएटली वी रिमूव आवर हैंड. सो वी हैव सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. ओके, एंड वी फील द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ ए स्किन. And one more important thing is that student, skin is the largest sense organ of the body. Is it clear? We feel the things with the skin, and skin is the largest sense organ of the body. ठीक है, तो we can living things feel. So living things feels. Two example I have already given you. If you are injured while playing, or if there is by chance there is an accident and your bone break up, जिसको हम लोग फ्रैक्चर भी बोलते हैं, so we feel the pain. हमें बहुत पेन होती है. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल मैंने दिया, बाई चांस यू टच द हॉट ऑब्जेक्ट, तो यू रिमूव योर हैंड इमीडिएटली एज यू फील पेन. ठीक है, इन द सेम मैनर एनिमल्स आल्सो फील. द मैनर इन विच मैनर ह्यूमन बींग्स फील्स, इन द सेम मैनर एनिमल्स आल्सो फील. वाई? एनी यू कैन गेस वाई? सो द आंसर इज बिकॉज एनिमल्स आल्सो हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक अस. इज इट क्लियर? एनिमल्स आल्सो हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक अस. इसलिए एनिमल्स को भी फीलिंग होती है. ठीक है, नेक्स्ट है, नाउ ये तो हो गई एनिमल्स की बात और ह्यूमन बींग्स की बात हो गई. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लांट्स. ओके, नाउ सी, ए प्लांट ग्रो टुवर्ड्स लाइट. In the case of a plant grows towards light. ठीक है, ए प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स लाइट. जैसे कि प्लांट्स के अगर आप लोग एग्जाम्पल लो, there are two systems in the plant. One is the shoot system and one is the root system. This has already I explained you when I teach you chapter plant in class 3. There are two systems in the plants, shoot and root. So root is below the ground, it moves below the ground, and shoot is above the ground. Okay, flower also bloom in a particular season. और पेड़ों पे जो फ्लावर्स आते हैं स्पेशली स्प्रिंग सीजन में सबसे ज्यादा फ्लावर होते हैं. ठीक है, सो ये हो गया, ए प्लांट ग्रो टुवर्ड्स लाइट. सिमिलरली अ रूट ग्रो डाउनवर्ड एंड शूट ग्रोज अपवर्ड. फ्लावर आल्सो ब्लूम इन अ पार्टिकुलर सीजन. इट मीन्स स्पेशली फ्लावर्स किस सीजन में आपको देखने के लिए मिलते हैं सबसे ज्यादा फ्लावर? तो बेटा आपको सबसे ज्यादा फ्लावर जो देखने के लिए मिलेंगे, दैट इज इन द स्प्रिंग सीजन.
ठीक है। आफ्टर विंटर देयर इज अ शॉर्ट सीजन, ये सीजन वाले चैप्टर में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लास 3 में भी बताया था। व्हेन स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर विंटर देयर इज अ शॉर्ट सीजन that is known as spring season, and in spring season you will see lot of flowers in the garden. Okay, plants have new leaves, plants को new leaves होते हैं, lot of flower देखेंगे, और at this time you will see butterflies and bees around the flowers. Why? Because they collect nectar. जो फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है, नेक्टर होता है, तो दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द, जिसको शहद बोलते हैं, ठीक है, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. सो स्पेशली दिस थिंग यू विल ऑब्जर्व इन द स्प्रिंग सीजन. नाउ लिविंग एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज next, living and non-living things depend on each other. Living and non-living things. Non-living things. Living and non-living things depend on each other. Living and non-living things depend on each other. Now see sunlight. See, living and non-living things depend on each other. Firstly, we discuss about the sunlight. जैसे sunlight है, water है, air है, land है, all these are non-living things. So, sunlight is a very important for us. You know that the only sun is the closest star to our planet Earth. ठीक है, जितने भी देखो, नथिंग इज पॉसिबल विदाउट द सनलाइट. सनलाइट के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन आवर प्लेनेट. एंड यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट ही प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये तो आप सबको पता है. ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर. तो ड्यू टू द सनलाइट and heat of the sunlight, the life is possible, because plants use sunlight, carbon dioxide and water to prepare their own food. अगर sunlight नहीं होती तो plants की लाइफ पॉसिबल थी नहीं, क्योंकि लीव्स जो होती है ना बेटा, लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, ये क्या करता है, सन की लाइट को अब्सॉर्ब करता है. इसी से प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिनरल भी होते हैं, बट इन दिस मैनर, सो दे ऑब्जर्व द लाइट एनर्जी ऑफ द सनलाइट. एंड वी नो दैट प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर ऑन दिस प्लेनेट. अगर सनलाइट नहीं होती तो इट इज अ पॉसिबल दैट द प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. अगर सनलाइट नहीं होती बेटा तो प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाते.
ये जो आपकी वाटर साइकिल है जिसको आप लोग कहते हो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दिस इज आल्सो पॉसिबल ड्यू टू द सनलाइट, बिकॉज ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन वाटर इवापोरेट्स एंड इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर। ठीक है, तो जो आपकी वाटर साइकिल है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दिस इज आल्सो पॉसिबल ड्यू टू द सनलाइट। नेक्स्ट है, इफ देयर इज नो सनलाइट देन हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर क्या, हमारी अर्थ जो प्लेनेट है ये बिल्कुल ठंडा होता, हमको सन से लाइट के साथ साथ उसकी हीट भी मिल रही है। अगर सनलाइट नहीं होती, सन की हीट नहीं होती तो हमारा प्लेनेट अर्थ जो है ये वार्म कैसे होता? बिना सनलाइट के तो ये बिल्कुल कोल्ड होता, बिल्कुल यहाँ बर्फ जमी होती, तो लाइफ पॉसिबल होती नहीं होती। सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सनलाइट। ओके, नेक्स्ट वाटर की बात करते हैं। वाटर क्या है? मोर देन 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। ये मैंने ऑलरेडी आपको अर्लियर क्लास में भी बताया था। आपको लगता है कि 70, आप कहीं भी जाते हो तो आप लैंड ही लैंड देखते हो, वाटर आपको उतना तो नहीं देखने को मिलता है। रेनी सीजन में वाटर होता है, फिर भी बुक्स में देता है कि 70% पोर्शन क्या है, अर्थ का सरफेस पूरा कवर्ड किससे? वाटर से कवर्ड है। सो वाटर इज प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज लाइक ओशंस है, सी है, रिवर है, पाउंड है, लेक्स है। सो हियर these are the water bodies on the surface of the earth। और जो आप लोग के जो क्लाउड्स हैं ये भी किससे फॉर्म हो रहे हैं? ये भी तो वाटरी फॉर्म है। इज इट क्लियर? जो आपके क्लाउड्स बन रहे हैं, जो वाटर साइकिल की प्रोसेस आपको बताई थी, ये क्लाउड्स भी किससे फॉर्म हो रहे हैं? वाटर से ही फॉर्म हो रहे हैं। इसलिए 70% जो है अर्थ का सरफेस किससे कवर्ड है? वाटर से ही कवर्ड है। ठीक है, और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अब जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। वाटर के बिना प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोग को पहले भी अर्लियर क्लास में बताई थी। वाई वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर? बिकॉज वाटर हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। इज इट क्लियर? 70% वाटर ही है बॉडी में। जो आपको ब्लड देखने में रेड लगता है, लेकिन उसका 60-70% क्या है? वो वाटर ही है। लिक्विड फॉर्म में होता है ना ब्लड इज इन अ लिक्विड फॉर्म, द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द प्रोटीन हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो प्लांट्स, और देखो प्लांट्स नीड वाटर टू प्रोड्यूस फूड। अगर वाटर नहीं होता, इफ देयर इज नो वाटर, if there is no water then life is possible? Life is not possible, because without water the land become very hard। आपने कभी भी देखा कल्टीवेशन में सबसे पहले लैंड में क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं, वाटर लगाते हैं। कभी आपने कोई प्लांट लगाया है? नहीं लगाया है, तो आप लगा के देखना। सबसे पहले जब प्लांट लगाते हैं हम सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए वाटर डालते हैं उसमें, और वाटर के बिना प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? विदाउट वाटर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज नॉट पॉसिबल। विदाउट वाटर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज नॉट पॉसिबल। सो वाटर इज आल्सो वेरी इंसेंशनल, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सनलाइट है, वाटर है, एयर है। एयर अगर प्लांट्स नहीं होते तो एयर, बिकॉज प्लांट गिव अस ऑक्सीजन, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स। तो विदाउट एयर भी क्या है? एयर भी नॉन लिविंग थिंग है। बट विदाउट एयर लाइफ पॉसिबल होती? नो, नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट एयर, बिकॉज एयर इज व्हाट? Air is a mixture of gases, and the gas which we need for our life, that is oxygen. So without air again the life is not possible। sunlight हो गया, water हो गया, air हो गया,
soil. See, all the plants grow in the soil. जितने भी प्लांट्स हैं बेटा, सारे प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में ही ग्रो करते हैं। ठीक है, आपको इतने मिनरल्स हैं, many minerals are present in the soil, many non-renewable resources. Non-renewable resources means the resources whose stock cannot be replaced immediately. Non-renewable resources, these all are present. ठीक है, सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ये सारी अर्थ प्लेनेट में है हमारे। ठीक है, सो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट द सॉइल? नो, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सॉइल, बिकॉज all the green plants they grow in the soil, they get water and mineral. क्योंकि आपने पढ़ा होगा root absorb water and mineral from the soil. ठीक है, अगर सॉइल नहीं होती तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं होती, तो प्लांट्स अगर ग्रोथ नहीं होती, प्लांट्स फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते, तो लाइफ पॉसिबल थी प्लेनेट अर्थ पे? नो, लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो दीज नॉन लिविंग थिंग्स, द लाइफ ऑफ द लिविंग थिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल। ठीक है, अब जितनी भी मैन मेड थिंग्स हैं, देखो जो तुम्हारे प्लांट्स हैं ये नेचुरल लिविंग थिंग्स है। जैसे मैंने आप लोग को बोला था व्हेन वी डिवाइड नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग के दो ग्रुप बनाए थे, एक नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स और एक मैन मेड। नेचुरल में आपके आ गए थे माउंटेन्स, क्लाउड्स, सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल। सो ये सब किसमें आ गए थे? आपके नेचुरल में। ठीक है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स में आ गए थे। इसी तरह जब हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो जो आपके प्लांट्स हैं बेटा, ये प्लांट दे आर आल्सो नेचुरल लिविंग थिंग्स, दीज आर प्रेजेंट इन द नेचर। जो जितने भी प्लांट्स हैं ये नेचर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो प्लांट्स आर प्रेजेंट नेचुरल लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स क्या है बेटा? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। और अनदर थिंग इज दैट जो जितने भी हम लोग कहते हैं मैन मेड थिंग्स हैं, सारी मैन मेड थिंग्स के लिए जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो आपको कहाँ से मिल रहा है? यहीं से मिल रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल जो आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, वी आर गेटिंग फ्रॉम दीज नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्हीं से हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है। जैसे आप लोग टेबल है, मैन मेड थिंग्स में टेबल है, चेयर है, बेंचेस हैं, तो वी आर गेटिंग वुड फ्रॉम वेयर? वी आर गेटिंग वुड फ्रॉम द ट्रीज। ट्री से ना हमको वुड मिल रहा है इन सारी चीजों के लिए। आज क्या है, हमने अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना रखा है। ठीक है, मैक्सिमम थिंग्स आर रनिंग विद द इलेक्ट्रिसिटी, सो वी आर also making this electricity from the water, हाइड्रो एनर्जी जो आप लोग बोलते हो, वाटर से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक है, तो वाटर है क्या? नॉन लिविंग थिंग ही तो है वाटर। इज इट क्लियर? सो मैनी थिंग्स जो भी रॉ मटेरियल मिल रहे हैं हमको नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिल रहे हैं, और दैट इज द रीजन लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द नॉन लिविंग थिंग्स। इसीलिए इन दिस चैप्टर अब हम लोग थोड़ा सा वो कर लें। इस चैप्टर में हमने नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंस को समझ लिया। ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स? वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स इन दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।